Hello everyone. We'll be doing today topic amines. Now in amines we have to do two parts. First is amines itself, and one more topic we have to do is diazonium salt. I think we did some part of diazonium salt in haloarenes. Haloarenes we did Sandmeyer reaction, Gattermann reaction, Bals-Siemens reaction, all that we did. That is a part of diazonium salt. Okay, so that also we are going to include out here in amines. Now, what are amines? How will you define amines? Amines are organic derivative of ammonia. Ammonia is NH3. So there are three hydrogen in ammonia. So you replace one, two, or all three hydrogen atom which are attached to nitrogen atom in ammonia by different or same alkyl or aryl group. We get amines. I'll repeat. Amines are organic derivative of ammonia. Ammonia is NH3. So in ammonia there are three hydrogen. So you replace one, two, or all three hydrogen atom which are attached to nitrogen atom in ammonia by same or different alkyl or aryl group. The compounds we get are called amines. Now amines, the nitrogen atom is sp3 hybridized. Amines have pyramidal geometry and the bond angle in amine is less than 109 degree because there are three bond pair and one lone pair on nitrogen atom. So because of this, ideally for sp3 hybridization, the bond angle should have been 109 degree 28 minutes. But because of one lone pair of electron, bond angle is less than 109 degree. Okay. So once again, what is definition of amines? Amines are organic derivative of ammonia in which one, two, or all three hydrogen atom which are attached to nitrogen atom are replaced by same or different alkyl or aryl groups. Now amines, example is methylamine. This is aniline or phenylamine. Okay. Classification of amines. Amines are classified as primary amines where only one hydrogen atom in ammonia is replaced by only one alkyl group. So if one hydrogen atom is replaced by one alkyl or aryl group, we get primary amines. If two hydrogen atoms are replaced by alkyl or aryl group, we get secondary amines. And if all three hydrogen atom of ammonia are replaced by three alkyl or aryl group, then we get tertiary amines. So only one hydrogen replaced, we get primary amine, two hydrogen, then secondary amine, three hydrogen, then tertiary amines. Now amines are further classified, secondary and tertiary amines are further classified as symmetrical or simple amines or mixed and unsymmetrical amines. Now what do you mean simple and symmetrical amines? In simple or symmetrical amines, both the alkyl group attached to nitrogen atom are same, or all three alkyl group attached to nitrogen atom are same. This is secondary simple amines. This is tertiary simple amines. Okay. So same alkyl and aryl group, simple amines. Mixed amines. If all three alkyl group or at least one of them is different. One is methyl, one is ethyl. Here, two ethyl, one methyl, or one methyl, ethyl, one propyl. If all three are different, or at least one is different, then such is called mixed amine. So if the different alkyl groups are attached, we get mixed amine. If same alkyl or aryl group are attached, we get simple amines. So once again, amines are classified as primary, secondary, and tertiary. Primary amines, only one hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl group. If two hydrogen atom of ammonia are replaced by two same or different alkyl or aryl group, we get secondary amines. And if all three hydrogen atom of ammonia
are replaced by same or different alkyl or aryl group, we get tertiary amines. Now, secondary and tertiary amines are further classified as simple or symmetrical and mixed or unsymmetrical. देखो सेकेंडरी अमाइंस में क्या होता है, दोनों तरफ if two alkyl groups are attached to nitrogen, then it is secondary amine. And if three alkyl group are attached to nitrogen, then it is tertiary amine. सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप NH होता है और टर्शियरी अमाइन में सिर्फ N. प्राइमरी अमाइन NH2, प्राइमरी अमाइन NH2 है, सेकेंडरी अमाइन NH है, टर्शियरी अमाइन सिर्फ N. अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो सिंपल, ऑल थ्री अल्काइल ग्रुप सेम है तो ये भी सिंपल. ये सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल है, ये टर्शियरी अमाइन का एग्जांपल है. अगर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप, तो ये सेकेंडरी अमाइन हुआ. पर ये मिक्स्ड अमाइन हुआ या तो अनसिमेट्रिकल हुआ. यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप है, तीनों में से एक भी डिफरेंट हुआ तो ये मिक्स्ड टर्शियरी अमाइन हुआ. तो ये सेकेंडरी का एग्जांपल है, टर्शियरी का, ये सेकेंडरी का एग्जांपल है, ये टर्शियरी का एग्जांपल है. ओके, सो सेकेंडरी अमाइंस when two alkyl group are attached to nitrogen, then secondary amine. Three alkyl group are attached to nitrogen, then tertiary amine. Secondary amine में अगर दोनों ग्रुप सेम है तो सिंपल और दोनों ग्रुप अलग अलग है तो मिक्स्ड. ऐसे ही टर्शियरी में तीनों ग्रुप सेम है तो सिंपल और तीनों ग्रुप अलग अलग है या तो एटलीस्ट एक ग्रुप अलग है तो मिक्स्ड टर्शियरी अमाइन हुआ. राज समझ आया, साथ समझ आया? ओके. हाँ सर. Now see, we'll do nomenclature. Hana, everybody has to write down this. Come on, copy down and give me the answers and write it down all together. Huh? We'll all write together. First one. चलो इसका कॉमन नेम बताओ और IUPAC नेम बताओ. मिथाइल अमाइन. Come on, try out. Yeah, Umema, right? Methane amine IUPAC. What about common name? Come on, anybody? Common name for this compound? Methyl amine. Umema, both answers are correct. Okay. Common name methyl amine. IUPAC name methane amine. Write it down. Methyl amine, methane amine. लिखो. चलो बोलो सेकेंड वाले का एग्जांपल ये दिया है स्ट्रक्चर. कॉमन नेम बताओ और फिर IUPAC नेम बताओ. हाँ, अगेन करेक्ट उमेमा. इथाइल अमाइन, इथेन अमाइन. कॉपी डाउन. इथाइल अमाइन, इथेन अमाइन. ऑर्गेनिक में लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा. सो यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस. कम ऑन, राइट डाउन फर्स्ट वन. मिथाइल अमाइन, मीथेन अमाइन. इथाइल अमाइन, इथेन अमाइन. हाँ, थर्ड वन का कॉमन नेम बताओ.
हाँ जेन करेक्ट. एन प्रोपाइल अमाइन, वेरी गुड. एन प्रोपाइल, राज एन प्रोपाइल लिखना पड़ेगा, आगे एन लगाना पड़ेगा. एन प्रोपाइल अमाइन, वेरी गुड. और आईयूपीसी में, आईयूपीसी नाम बताओ. अमृता प्रोपेन अमाइन रॉन्ग है, क्या नाम होना चाहिए बताओ. हाँ राज गुड. प्रोपेन वन अमाइन, वेरी गुड. वन प्रोपेन अमाइन नहीं, प्रोपेन वन अमाइन. ओके. एन प्रोपाइल अमाइन और प्रोपेन वन अमाइन, ठीक है ना. प्रोपेन वन अमाइन लिखो, वेरी गुड. या अमृता प्रोपेन वन अमाइन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, चलो इसका कॉमन नेम बताओ. हाँ सेक प्रोपाइल अमाइन, उमेमा करेक्ट. इसको हम सेक भी बुला सकते हैं और प्रोपाइल में आइसो भी अलाउड है. सो सेक और आइसो प्रोपाइल अमाइन एंड प्रोपेन टू अमाइन. नंबरिंग ऐसे जाएगी, लंबी चेन, 3 कार्बन एटम, 1 2 and 3. So this will become propane 2 amine. Very good. Okay, copy down. अभी इसका नाम बताओ. दोनों तरफ NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है. जब दो हालाइट बाजू बाजू में लिखते तो हम विसिनल डाइहालाइड बुलाते हैं. विसिनल डाइहालाइड को हम कैसे नाम देते थे? इथिलीन डाई क्लोराइड. वैसे अभी ये अमाइन है, तो कैसे नाम दोगे इसको? विसिनल की तरह नाम देना है. इथिलीन डायमाइन. ट्राई आउट. इथिलीन डायमाइन. विसिनल डाइहालाइड को कैसे नाम देते हैं? वैसे नाम देना है, बताओ. इथिलीन डाई क्लोराइड वैसे लिखते हैं ना हम लोग. तो यहाँ पे इथिलीन है और 2 अमाइन है. हाँ इथिलीन डाई अमाइन, राज करेक्ट. इथिलीन डाई अमाइन. अभी आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका? व्हाट विल बी आईयूपीसी नेम? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 2 कार्बन, 1 and 2. NH2 फर्स्ट कार्बन पे भी है और NH2 सेकेंड कार्बन पे भी है. नहीं, पहले इथेन पहले आएगा. इथेन वन, इथेन पूरा ई आएगा क्योंकि डाई अमाइन आ गया ना. इथेन 1,2 डाई अमाइन. ऋषभ करेक्ट. ऋषभ ने सही आंसर दिया है. इथेन में ई रखना है. डाई अमाइन के लिए है ना, डी आ गया अभी बीच में. अगर खाली अमाइन है तो ई निकाल दो, डाई अमाइन है तो ई रखो. ओके. हाँ जेन क्या हुआ बताओ. इथेन में ई रखना है. ई इथेन 1,2 डाई अमाइन. जब नॉर्मल अमाइन लिखते हैं ना तो हम लोग ई निकाल देते हैं क्योंकि ई और ए साथ में नहीं आता है. पर यहाँ पे बीच में डी आ गया, इसलिए इथेन 1,2 डाई अमाइन ऐसे लिखना है. अभी देखो ये नेक्स्ट वाला. हाँ, एक छोड़ के डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड को क्या बुलाते हैं? कॉमन नेम, एक छोड़ के डबल बॉन्ड. चलो हेलो अल्केन में सिखाया, ऐसे ही नाम देना है इसको.
याद है किसी को? क्या बुलाओगे इसको? फंक्शनल ग्रुप को एक छोड़ के डबल बॉन्ड है तो ऐसे ग्रुप को क्या बुलाते हैं? व्हाट इज दिस ग्रुप कॉल्ड? वेरी गुड ऋषभ, अलाइल. दिस इज कॉल्ड अलाइल अमाइन. एक छोड़ के डबल बॉन्ड याद रखने बोला था. डायरेक्ट डबल बॉन्ड को विनाइल. 2 कार्बन हो तो, पर 3 कार्बन हो तो फंक्शनल ग्रुप को एक छोड़ के डबल बॉन्ड. प्रोपीन, जैसे प्रोपीन का समझाया था, इसको हम अलाइल बुलाते हैं, अलीन. तो ये अलाइल अमाइन हो गया. अभी इसका आईयूपीसी नेम बताओ. प्रायोरिटी किसको मिलेगी? NH2 को मिलेगी कि डबल बॉन्ड को मिलेगी? सो हाउ विल नंबर फ्रॉम लेफ्ट और राइट? नंबरिंग कहां से करोगे? यू कैन अनम्यूट एंड गिव द आंसर. नंबरिंग कहां से शुरू करूं, लेफ्ट से या राइट से? विच फंक्शनल ग्रुप विल गेट प्रायोरिटी, NH2 और अल्कीन? किसको प्रायोरिटी देनी है? हाँ चलो, NH2 को प्रायोरिटी देनी है. अब ये 1, 2 और 3, वेरी गुड. तो अभी कैसा नाम दोगे? व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? 2 of 3 1 combined. Come on, give me the name of the compound. साथ 2 इन आएगा, 2 इन. प्रोप 2 इन. इन में से ई निकालना पड़ेगा. ओके. प्रोप 2 इन 1 अमाइन. हाँ, गुड ट्राई. बट प्रोप 2 EN, ई निकाल के फिर अमाइन लगेगा तो ENE नहीं आएगा. जब डाई ट्राई अमाइन होता है तो ई रखना होता है. खाली अमाइन होता है तो ई निकाल देना है. सो प्रोप 2 इन 1 अमाइन. सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है. साथ समझा ना? सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट कार्बन पे NH2 ग्रुप है. थर्ड कार्बन नहीं लेते, सेकेंड कार्बन पे लेना पड़ेगा. ओके. Also typing next to person. हाँ. ओके. अभी देखो, यहाँ पे से कौन सा अमाइन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी? बताओ. विच अमाइन इज प्राइमरी, विच इज सेकेंडरी, विच इज टर्शरी? अभी इसमें से कौन सा अमाइन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी है? हाँ ऋषभ, फोर्थ सेकेंडरी नहीं है. ओके. ऑल आर प्राइमरी. हेडिंग देखो, ये सिर्फ प्राइमरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर है. सो ऑल आर प्राइमरी अमाइन. यहाँ पे कार्बन के बेसिस पे सेकेंडरी टर्शरी नहीं क्लासिफाई होता है. प्राइमरी अमाइन मीन्स ओनली वन अल्काइल ग्रुप इज अटैच टू नाइट्रोजन एटम. जब भी NH2 होगा तो ये सारे अमाइंस को हम प्राइमरी गिनेंगे. सो दिस ऑल आर प्राइमरी अमाइन. ये फोर्थ वाला भी प्राइमरी अमाइन गिना जाएगा. Here we don't see secondary tertiary कार्बन नहीं देखते हैं. यहाँ पे हम NH2 देखते हैं. अगर जिसमें भी NH2 लगा हुआ है मतलब वो प्राइमरी अमाइन की कैटेगरी में जाएगा. देखो ये वाले भी. Come on, common name for this and IUPAC name for this. हाँ अमृता, करेक्ट.
कॉमन नेम में एनिलीन या तो फिनाइल अमाइन भी ले सकते हैं, एनिलीन और फिनाइल अमाइन. कम ऑन, IUPAC नेम. What is IUPAC name for this? Aniline or phenylamine common name. What about IUPAC name? नहीं, बेंजाइल अमाइन रॉन्ग है. बेंजाइल अमाइन नहीं है. बेंजाइल क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ CH2 तो बेंजाइल होगा. बेंजीन रिंग के साथ CH2 लगाओगे तो बेंजाइल अमाइन होगा. What is name of this compound? It is not benzyl amine. टोल्यूइन बेंजीन रिंग के साथ CH3 होता है तो टोल्यूइन होगा. यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ CH3 नहीं है तो इट कैन नॉट बी टोल्यूइनोम. अमीनो बेंजीन, एक्चुअली अमीनो बेंजीन कॉमन नेम हो जाता है. बेंजीन अमाइन, बेंजीन का ई निकाल के अमाइन लगा दो. और हम एनिलीन को कॉमन और IUPAC दोनों में भी कंसिडर कर सकते हैं. सो एनिलीन कैन बी टेकन इन IUPAC, अदरवाइज बेंजीन अमाइन. ओके, जैसे मीथेन अमाइन होता है ऐसे ये बेंजीन अमाइन हो जाएगा. ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखो. MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. अभी बताओ ये क्या हो जाएगा? Benzene ring with CH3 is called toluene and benzene Toluene. ring with NH2 is called aniline. अब ये दोनों का मिक्सचर है and they are ortho to each other. तो ये orthotoluidine, क्या नाम हो जाएगा इसका? Orthotoluidine. It is a mixture of toluene and aniline both. तो orthotoluidine. Okay, orthotoluidine ऐसे हो जाएगा. And they are ortho with respect to each other. मेटा पे होते तो मेटाटोल्यूडाइन और पैरा पे होते तो पैराटोल्यूडाइन. ओके, अब इसका IUPAC नेम बताओ. ये पेरेंट हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट तो हो जाएगा 2 अमीनो टोल्यूइन. ये अमीनो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, सो 2 अमीनो टोल्यूइन, दैट विल बी द पेरेंट. या तो इसको 2 मिथाइल एनिलीन बुलाओगे तो भी चलेगा. इट इज अलाउड बोथ द वेज. अब ये वाला बताओ. व्हाट इज कॉमन नेम फॉर दिस? Come on, no one. Common name. ये रिंग को क्या बुलाएंगे? 6 कार्बन की रिंग है, उसको क्या बुलाओगे? हाँ, साइक्लोहेक्साइल अमाइन. ओम करेक्ट. साइक्लोहेक्साइल अमाइन करेक्ट. Okay, so cyclohexylamine. Om has given correct answer. What about IUPAC name? साइक्लोहेक्साइल को IUPAC में क्या बुलाओगे? What will be cyclohexyl called in IUPAC? सारे एग्जाम्पल साथ साथ में कॉपी करते रहो. दिस आर ऑल एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स. You have to know them. NEET, JEE, all this is very important. What is cyclohexylamine will be called in IUPAC? Yeah, Om correct. साइक्लोहेक्सेनामाइन. ये साइक्लोहेक्साइलामाइन है और IUPAC में इसको साइक्लोहेक्सेनामाइन. वेरी गुड साद. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. अभी इसको क्या बुलाओगे? बेंजीन रिंग विथ CH2. अभी मैंने समझाया. बेंजीन रिंग विथ CH2 को क्या बुलाओगे? बेंजीन रिंग के साथ CH2 है और फिर NH2 ग्रुप है
So what will be the common name and IUPAC name? First you tell me common name. Yeah, very good Om, very good Rishabh. Benzyl amine. Benzene ring with CH2 is called benzyl amine. अब यहाँ पे ये कंपाउंड पेरेंट है और बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको क्या बुलाओगे? अभी हम लोग ने, मैंने तुमको जब हेलो अल्केन्स किया था तभी मैंने ये समझाया था, बेंजीन रिंग यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट गिनी जाती है, तो क्या क्या नाम हो जाएगा इसका? What will be IUPAC name for this? I'll give you clue. ये पेरेंट कंपाउंड सिर्फ ये है और ये सब्स्टिट्यूएंट है. वेरी गुड ओम. फिनाइल मीथेनमाइन. बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट गिनी जाती है तो ये फिनाइल हो जाता है और मीथेन अमाइन पेरेंट है. सो फिनाइल मीथेन अमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. याद रखो एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं क्वेश्चंस. ओके, अभी इसमें भी सब NH2 है, सब ग्रुप NH2 है. So they all are primary amines. So we are doing examples of all primary amines till now. अभी हम सेकेंडरी अमाइंस के नॉमेनक्लेचर करेंगे. अभी देखो दोनों तरफ मिथाइल है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? What will be common name for this? 2-methyl Copy amine. down all these examples, okay? Simultaneously. Important they are. Dimethyl amine. Yeah, Om, correct. Dimethylamine. Amruta, correct. Dimethylamine. अभी देखो इसमें एक को पेरेंट लेना है और एक को सब्स्टिट्यूएंट लेना है. अभी ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, तो हम पेरेंट लेंगे मीथेन अमाइन और ये मिथाइल नाइट्रोजन पे है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल N. This capital N shows that this methyl is on nitrogen. N methyl और ये मीथेन अमाइन, मतलब एक तरफ वाला ये पेरेंट ले लो और ये एक सब्स्टिट्यूएंट. ओके, अभी देखो सेकेंड वाला एग्जांपल हम लोग लिखते हैं. चलो, एक तरफ क्या है? इथाइल है और एक तरफ मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? methylamine. या ओम, करेक्ट. इथाइल मिथाइल अमाइन, इसका नाम हो जाता है इथाइल मिथाइल अमाइन. या अमृता, करेक्ट. इथाइल मिथाइल अमाइन. अभी ये बड़ा है, अल्फाबेटिकली जाना है यहाँ पर. हाँ, इथाइल मिथाइल, ई कम्स फर्स्ट. अभी ये बड़ा कंपाउंड है तो ये पेरेंट हो जाता है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन नाइट्रोजन, तो इसका IUPAC नेम बताओ. यार मिथाइल इज अटैच्ड ऑन नाइट्रोजन और ये पेरेंट है, ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड पेरेंट है. What will be IUPAC name for this? Mrunali, correct. Om also correct. N-methyl ethanamine. ये नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप है और पेरेंट इथेन अमाइन है, तो N-methyl ethane amine. ओके, नाउ थर्ड वन. चलो, इसका कॉमन नेम पहले बताओ. दोनों तरफ बेंजीन रिंग है. Dibenzyl amine. What will be the common name for this?
हाँ, साद इज रॉन्ग, ओम इज करेक्ट। बेंजाइल, साथ बेंजाइल कब आता है? जब बेंजीन रिंग के साथ CH2 हो तो ही बेंजाइल लिखना है। ये खाली दोनों तरफ बेंजीन रिंग है तो इसको बुलाएंगे फिनाइल। ओम करेक्ट, ओम। डाई फिनाइल अमाइन, दोनों तरफ बेंजीन रिंग है ना, तो उसको भी हम यहाँ पे फिनाइल कंसीडर करेंगे। बेंजीन रिंग के साथ CH2 हो तो बेंजाइल होता है, बेंजीन रिंग के साथ CH हो तो बेंजाइल। अब ये खाली बेंजीन रिंग है दोनों तरफ C6H5, तो इसको बोलते हैं फिनाइल। नाउ व्हाट विल बी IUPAC नेम फॉर दिस? एक पेरेंट ले लो, बेंजीन रिंग के साथ एक पेरेंट ले लो, ये पेरेंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। एन फिनाइल वेरी गुड, एनिलाइन। एन फिनाइल एनिलीन, या तो एन फिनाइल बेंजीन अमाइन, एन फिनाइल बेंजीन अमाइन लिखो, या एन फिनाइल एनिलीन लोगे तो भी चलेगा। कॉपी डाउन ऑल 3 एग्जांपल्स। और देखो सेकेंडरी अमाइंस मतलब NH, NH हुआ तो सेकेंडरी अमाइन, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। NH2 हुआ तो प्राइमरी, NH हुआ तो सेकेंडरी। अभी देखो हम टर्शरी के लिए करेंगे। टर्शरी, तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप है। व्हाट विल बी कॉमन नेम फॉर दिस? सेम alkyl group on all 3 sides and only N, then it is called tertiary. Yeah, Om is also correct and Amruta also correct. तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप है इसलिए इसको ट्राई मिथाइल अमाइन ऐसे बुलाएंगे। अभी इसमें ना सिर्फ एक को पेरेंट ले लो और 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों ही नाइट्रोजन पे अटैच्ड है, दोनों ही नाइट्रोजन पे अटैच्ड है और एक ही पेरेंट है, तो इसको IUPAC नेम में क्या बुलाओगे? There are 2 substituent on nitrogen and 1 alkyl group is parent. So how will you name this in IUPAC? Very good, Om. N dimethyl methanamine. 2 बार कैपिटल N लिखना पड़ेगा. Now this capital N indicates there are 2 methyl group attached to directly nitrogen atom. So N dimethyl and methanamine is the parent. अभी देखो इसमें तीनों तरफ इथाइल है तो इसका कॉमन नेम इसी की तरह, ये ट्राई मिथाइल अमाइन था तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तीनों तरफ इथाइल है, सो इट विल बी ट्राई इथाइल अमाइन। अभी IUPAC में भी ये एक पेरेंट लिखो और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है एंड बोथ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑन नाइट्रोजन,